अच्छा, सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बस यही चीज़ है, आपको बस पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैथोड पे होगा, ठीक है। एंड जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है दैट शुड बी एट एनोड। और बैटरी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, वो ऑक्सीडाइज होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। वो सिल्वर आयंस बन जाएंगे, वो पानी में घूमना शुरू हो जाएंगे। दिल गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव कैथोड वहां पे। द लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर आयंस लेस रिएक्टिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू सिल्वर, ठीक है। इसका एक और मतलब वो पहला वाला यूज तो हमने कर लिया, हाउ इसको कॉपर प्योरिफाइड, वी डिड दैट। नाउ अब जो नेक्स्ट चीज है ना वो ये कि वी डन विद इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली, ठीक है। जो अगला पार्ट है ना, दैट इज सेल्स। नाउ सेल्स इज नॉट cells and electrolysis are like opposite to each other, ठीक है। तो that's known as the electrochemical cell, which is also sometimes known as the galvanic cell. अच्छा, first thing, cells are the opposite of electrolysis. ठीक है, what happens in electrolysis is कि, one second, अच्छा, what happens in electrolysis is कि electrolysis में ना बैटरी, you use energy, ठीक है, there is electrical energy, and that electrical energy is converted into a chemical reaction. तो उसकी वजह से ना what you have is you have a chemical reaction. वो कैथोड और एनोड के ऊपर ना you have products formed, ठीक है। द सेल इज द ऑपोजिट। सेल के अंदर होता है कि you have a chemical reaction, उसकी वजह से an electrical energy is produced. तो cells में there's a chemical reaction happening, and because of that chemical reaction you produce electrical energy, ठीक है। तो वो ऑपोजिट है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। One of them consumes electricity, the other one produces. So this one consumes, and this one produces. This one produces electricity. Just hold on 1 second, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड रुको। अच्छा चलो ठीक है, ये पहला पहला डिफरेंस है which is the difference between a cell and electrolysis, ठीक है। अच्छा, so how does a cell operate? The first one, वो दो तीन टाइप के सेल कर लेते हैं, दो टाइप के। ये आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज, योर रिमोट सेल्स, ऑल ऑफ दीज आर cells. So the first type is कि what you're going to do is कि connect two metals together having different reactivity. ये वाला शायद we already did this in metals as well, ठीक है। So that's the first type of cell.
reactivity in an electrolyte. ठीक है, that's our first cell. अच्छा, अब इसमें ये कि so I'm going to pick two metals. अच्छा, they can be present in the same electrolyte or in two different electrolytes. Doesn't make a difference, ठीक है. अच्छा, that's a container and I have magnesium. और मेरे पास दूसरी साइड पे I've got another metal which is, let's say, silver. ठीक है, and I'm going to connect them together and remember there is no battery, ठीक है, ये खुद battery है, it's going to produce. बल्कि what I'm going to have is I'm going to have a bulb in the middle. अब पता नहीं bulb का symbol क्या होता है, क्या होता है symbol? I guess it's a cross. बल्कि bulb को छोड़ो, I'm going to put a voltmeter over here. ठीक है, so that's, ये मैंने wire से ना, this is my external circuit. Now there is no current, there is no current. अब नहीं है, current produce होगा when there's a reaction. So, and an electrolyte is definitely needed. ठीक है, so there has to be an electrolyte. There has to be free moving ions over here. तो आपकी जो यूपीएस वगैरह की बैटरीज होती हैं, सोलर बैटरीज होती हैं, उसके अंदर यू हैव टू कीप ऑन कॉन्टिन्यूसली एडिंग एसिड टू इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड कर लेते हैं. So basically you need ions in the solution. अच्छा, होगा कि Mg is the one that's more reactive. ठीक है, reactivity sees में Mg is right at the top. तो अच्छा, so Mg is more reactive. Now, since Mg is more reactive, तो उसका मतलब it likes to lose electrons. So it likes to get oxidized. ठीक है, electron lose कर रहा है. So the reaction that's going to happen over here is कि आहिस्ता आहिस्ता ना the Mg will start dissolving and it likes to lose electrons. ठीक है, it's got a greater tendency to lose electrons and it's going to form a lot of Mg ions. So आहिस्ता आहिस्ता silver is the unreactive one. So silver, nothing would probably happen to silver. The Mg will start dissolving. It will start turning into मैग्नीशियम आयंस. ठीक है, और आपका जो वो है ना इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इट विल स्टार्ट टू डिसॉल्व. ठीक है, सो माय इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इट्स, अच्छा, that electrode starts getting eaten up. ठीक है, it's getting dissolved because all the magnesium is simply dissolving, turning into ions. लेकिन in the process it produces a lot of electrons. वो electrons जो है ना वो इसके ऊपर जमा होना शुरू हो गए. ठीक है, so there's a lot of negative electrons that are being produced that are not going anywhere. ठीक है, so electrons accumulate on the electrode. ठीक है, so is this clear? Yes. ठीक है, दुआ मरियम, ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, then what happens is कि so electrons are accumulating over there. और सिल्वर को कुछ भी हो, सिल्वर is the unreactive one, so electrons will naturally develop a tendency to actually move from the region of, मतलब वो नहीं होता, उधर ज्यादा है तो they'll start traveling to the other side. ठीक है, they'll start traveling to the other side and they will eventually reach silver.
अब जैसा वो गाड़ियां चल रही होती हैं रोड पे, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी इम्पीडेड, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इफ अगर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है ना यहाँ पे, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द करंट वुड नॉट फ्लो, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट बी एबल टू फ्लो। सो व्हाट इज नीडेड इज के, अब सिल्वर तो कुछ नहीं कर रहा, सिल्वर इज अनरिएक्टिव, इट डजंट लाइक टू डू एनीथिंग, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके करेंगे क्या? इफ दे स्टॉप, तो द होल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टॉप। तो यू नीड आयंस इन द ये सॉल्यूशन में ना, लेट्स से मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, तो देयर इज a lot of, let's say, H plus one ions at this side. So you need someone to gain those electrons, ठीक है, ताकि वो मूवमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता रहे, ठीक है। एंड दैट समवन इज H plus one, इट्स डायटोमिक, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, दो H एटम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो मिलके ना they'll form H2 gas. So what you'll notice is you'll start seeing bubbles of H2 gas forming at this side. और वो H2 जो है ना, bubbles of H2 gas, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके दिल दिल फ्लाई अवे, ठीक है, बिकॉज द gaseous, so they'll just go away. So the movement of electrons is not going to be impeded, कि यहाँ पे H plus one is going to pick those electrons, take those electrons, turn into H2 gas, और वो निकल जाएंगे। which is why ये जो आपकी बैटरीज होती है ना, ये कार बैटरीज, ये पुरानी बैटरीज हैं एक्चुअली, ठीक है, you have to continuously add acid to it, ठीक है, क्योंकि आयंस बार बार खत्म होते जा रहे होते हैं, you have to keep on replenishing those ions, ठीक है। वो आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। तो इज दिस क्लियर, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसके बारे में they'll ask you a couple of things, ठीक है। नंबर वन, हाउ कुड यू इंक्रीज द वोल्टेज, या हाउ डू यू इंक्रीज द करंट? तो वो क्या करोगे, यू इंक्रीज, बल्कि ये पूछेंगे दो तीन तरीके हैं, ठीक है। नंबर वन, मेरे ख्याल से दो तरीके हैं। तो हाउ डू यू हाउ टू इंक्रीज वोल्टेज ऑफ द सेल? So the way you're going to do that is, number one, increase the difference in the reactivity. यार अभी तो रिएक्टिविटी में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। मैग्नीशियम की बजाय if I put calcium over there, that's going to produce an even higher voltage, ठीक है। Increase difference of reactivity, or what could happen is कि you can increase the concentration of the electrolyte। मतलब कम H plus one होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी रिमूव्ड। जैसा वो ट्रैफिक जैम होती है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आगे से इफ द कार्स स्टार्ट गेटिंग स्टक ओवर हियर, तो द इलेक्ट्रॉन्स get stuck over here, the flow of electrons would be impeded, ठीक है। तो जितने ज्यादा H plus one electrolytes होंगे, the faster would be the movement of electrons. So you can increase the concentration of the electrolyte, ठीक है, ये क्लियर है? Yes. Yes. तो आपकी नॉर्मल जो ये रिमोट सेल बैटरीज होती हैं, उसमें समथिंग सिमिलर टू दिस इज हैपनिंग, ठीक है। खासतौर पे जो लिथियम जो है वो बड़ा पॉपुलर है, ये जो खासतौर पे हाइब्रिड मतलब मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी। अच्छा, लिथियम कहीं कहीं पे सिंपल रिएक्शन दिए हुए, एक सेकेंड। अच्छा, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर वो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, द लिथियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द अदर साइड द लिथियम आयंस दे
दूसरी साइड पे ना इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ लिथियम आयन बैटरीज या आपकी जो रिमोट बैटरीज दे ऑल वर्क। तो यू नीड टू रिएक्शंस फॉर दिस टू हैपन। ये वैसे एग्जांपल दिया था। तो एक तो है कि यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी। एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ऑन द अदर साइड इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड। ठीक है। अच्छा, देन देयर इज अनदर पॉपुलर सेल which is known as the hydrogen oxygen fuel cell. अच्छा, इसके अंदर क्या है? It's a similar thing. You need a reaction which produces electrons. You need a reaction which consumes electrons. So this cell operates like this. It's going to have, it's going to have two electrodes, and the two electrodes would probably be made out of platinum. Or इसमें ना the two electrodes will be placed into gas jars. बल्कि एक ड्रॉ करते हैं उसको फिर कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, they'll be placed in gas jars. ठीक है, that's a gas jar. इसको we can, अच्छा ये मेरे बन गए gas jar. And my two electrodes are connected by a with a voltmeter or with a bulb. ठीक है, चलो ये कनेक्ट हो गए with a voltmeter or a bulb. External circuit में a current would flow. अच्छा, and this is made out of platinum. अब एक साइड पे ना you're going to be adding H2 gas. H2 gas is coming in. और दूसरी साइड पे you'll be adding what you'll be adding O2 gas. ठीक है, उधर O2 gas आ रही है, ऑक्सीजन गैस। And in the solution में ना you've got some sort of electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होना मस्ट है। And that electrolyte could be, an example is sulfuric acid, or a lot of times it is sulfuric acid, or it could be an alkali as well। सबसे जो कॉमन चीज़ है वो NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, it could be anything। Now, the hydrogen oxygen fuel cells have these two electrodes। ठीक है, there's hydrogen gas coming in, there's oxygen gas coming in। Solution में ना there's a lot of H plus ions, there's a lot of OH ions। ठीक है, that's all, a lot of ions in the solution। अच्छा, यहाँ पे ना एक रिएक्शन होता है which is कि the hydrogen comes in and it starts to मतलब the hydrogen gas comes in। उधर वाला पहले कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस कम्स इन, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंड इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स।
and starts producing OH ions. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है ना दे कम इन एंड दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद वाटर एंड दे स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे ना रिडक्शन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है दे लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट विल हैपन टू योर इलेक्ट्रोड. वो उधर इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे. इट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करना शुरू हो गया. Well, is this part clear? Yes. Yes, sir. अच्छा, what will happen to the other side? The other side is कि hydrogen is going to come in and it's going to react with OH ions. ठीक है. और water बनाने के लिए एक सेकेंड it's going to be two OH ions and it will start losing electrons. तो कितने water बनेंगे? That's going to be two H2Os and it will lose two electrons. Equation balanced है ना? That's H224 4 हो गया. ठीक है. And oxygen's 2. ठीक है. That's balanced. So on this side you have a reaction going on. Hydrogen coming in, reacting with the OH ions that are in this solution, and they start to lose or produce electrons. ठीक है. तो वहां पे what is happening is oxidation is happening. There's a lot of loss of electrons taking place. Clear है ये? Yes, sir. अच्छा, तो ये दो चीजें हो गई हैं. और तो यहाँ पे ना there's a lot of electrons getting produced. तो on this electrode over here, a lot of electrons they get produced. So naturally, what will happen? The electrons will move from this electrode to the electrode on the right. ठीक है. ये क्लियर है? Yes. And there's going to be current produced. ठीक है. That's it. अच्छा, so that's something that you have to remember. This is a hydrogen oxygen. This one is a hydrogen oxygen fuel cell. इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि that's it's used in a number of places. अब तो cars वगैरह, मतलब you've got hydrogen powered cars. ठीक है. Cars हैं, rockets. ठीक है. मतलब उसकी उनके जो electrical system है that's they use hydrogen oxygen fuel cells. The advantage, it's got a couple of advantages. इसकी जो overall reaction है ना, like if I add up the two reactions, remember इसको half, but वो redox reaction, one is oxidation, the other one is reduction. If I add up both reactions, दोनों को simply मैं copy करके अगर add करूं, तो what you'll notice is मैंने वहां पे OH ions are getting produced, over here OH ions are getting, बल्कि वो add कर देते हैं. Just one second, let me. Redox जो होता है ना, that's made up of two reactions. One is reduction, the other one is oxidation. तो redox, ये दोनों हाफ रिएक्शन है. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज अगर वो. अच्छा, सो दीज टू रिएक्शंस आर हैपनिंग. इसमें पहला काम करना है कि इफ आई वांट टू मेक द ओवरऑल रिएक्शन, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. सो आई नीड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल. तो इस वाली इक्वेशन को ना आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो ये 4 हो जाएगा. 2H2O विल बिकम 4 एज वेल. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? दैट्स गोइंग टू बी 4 इलेक्ट्रॉन्स. वो इसलिए किया ताकि द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग लॉस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग गेन्ड दे हैव टू बी इक्वल. मतलब सेल में वही होगा कि इधर से अगर
Four electrons are produced. On the other side, four electrons should be, they should be gained. ये clear है? Yes. And the overall equation is going to be you just add them up. तो if I add them up, जैसा मैथ की इक्वेशन होती है, अगर वो दोनों साइड पे लेट्स से x और x आ रहा है, दैट गेट्स कैंसल्ड आउट, ठीक है? तो मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड को ऐड करूँ, इट्स गोइंग बी O2 प्लस 2H2O। बल्कि सारा ऐड अप कर लेते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स द लेफ्ट साइड। नीचे लेफ्ट साइड पे क्या, दैट्स 2H2 प्लस फोर OH ions, राइट साइड, ठीक है? व्हाट्स ऑन द राइट साइड? On your right side, you've got four OH ions, you've got four H2Os, and you've got four electrons. तो ये electrons cancel out हो गए, ठीक है? The OH ions they get cancel out, और वाटर भी टू एन एक्सटेंट, 2H2O को उधर लेके जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी 2H2Os, ठीक है? मतलब 4H2O minus this 2H2O. So your overall reaction now is it's just simply O2 plus 2H2 reacting and forming what? Forming 2H2O. That's my that's my overall reaction. ठीक है? वो तरीका मैंने वैसे बता दिया, but you just have to remember that that's your overall reaction. It's oxygen and H2 that are reacting and they're forming water molecules. ठीक है? Is this clear? Yes, sir. तो एक एडवांटेज इसका ये कि इसमें इट्स क्लीन, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। क्लीन है, रिन्यूएबल है, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट दैट्स प्रोड्यूस्ड। जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट वाटर है, ठीक है? तो ऑक्सीजन जो है वो एयर में है, ठीक है? हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और फ्रॉम ऑयल एज वेल। ऑयल से अगर करें फिर तो फायदा कोई नहीं है। मतलब अगर आपने ऑयल ही यूज करना है तो ऑयल तो आप पहले भी यूज कर रहे हो। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पावर्ड कार्स होती हैं, दे डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है? या नहीं, सॉरी, ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस हुए थे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज हाइड्रोजन दैट वाज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो वो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एंड देन दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इसलिए वो रिन्यूएबल है। यू कैन obtain हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्लेसेस। डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। पहला डिसएडवांटेज, ठीक है? इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है? सेकेंड इज दैट इट्स ऑल्सो वेरी हार्ड टू डिफिकल्ट टू स्टोर गैसेस। गैस स्टोरेज जो है वो गैसेस को हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करना पड़ता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गैसेस। तो ये तो इसके इसके मसले हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? अच्छा, इसका ना आप बस यही वाला याद रख लो, दैट्स इनफ। दिस इज देयर आर अदर इक्वेशंस फॉर द सेम रिएक्शन। बल्कि इसका एक सेकंड में सिलेबस में चेक कर लूं। एक तो आपका सिलेबस कहाँ गया? 1 सेकेंड। मतलब डिटेल वैसे कोई खास नहीं है, बस ये है। So I guess they're not asking, they're not looking for details, so that would be, ठीक है, that would be it. That would be it.
ठीक है, हाफ इक्वेशंस याद रखना, वो कैथोड और एनोड दोनों साइड में जो इक्वेशन होते हैं, दैट दोज आर नोन एज योर हाफ इक्वेशंस। और इसके अंदर बस एक चीज रह गई है, विच इज कि जस्ट रिमेंबर कि जहां पे ना रिडक्शन होती है, दैट्स नोन एज द कैथोड। और जहां पे ऑक्सीडेशन होती है ना, दैट्स गोइंग टू बी नोन एज द एनोड। दैट्स इट। तो वी आर pretty much done with electrolysis, that's it। ठीक है, ये सेल्स भी हो गए। ठीक है, ये फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। चले, ओके, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।